Hello students. So today we are going to discuss BTES 3 paper. Now, the first question is lowest oxidation state of phosphorus in. So we can calculate oxidation state for each compound. Now, in H3PO2, the oxidation state is +1 as calculated here. In H3PO4 it is 5, in H4P2O7 it is 5, and in H3PO3 it is 3. So the lowest oxidation state is H3PO2. Very easy question. Next is we have to match the column. Formation of NS3 from N2 and H2. Okay, this is a combination reaction and all right. This is the decomposition reaction. One compound is getting broken down into two. This is the decomposition reaction. Well, I can write it down. A it will be where is combination of Eka third. This is decomposition 1. Reaction of aqueous BaCl2 with dilute H2SO4. So BaCl2 when react with dilute H2SO4, it forms BaSO4 plus 2HCl. This is the double displacement reaction. ये आपस में react कर रहे हैं like this and ये आपस में react कर रहे हैं. So this is second. Density of oils is redox beta. So 3124. 3124 it is T. Yes. What are the oxidation state of N? So NH4NO2 is a salt basically. It breaks into two parts, NH4 plus NO2 minus. So in NH4, the oxidation state comes as -3. Hydrogen ka it will be +1. Nitrogen ka we consider as X and total is +1. In NO2 minus, the oxygen ka it will be -2. 2 into -2 and is equal to -1. So it comes out as +3. Okay. So -3 +3 will be the answer. Good question. Which reaction does not involve either oxidation or reduction? Now, in CrO4 2 minus, the oxidation state is +6. Chromium ka, here it is +6. It is same only. So no change in oxidation state means neither oxidation nor reduction. All right. And in other A, B, D options, as you can see, the oxidation state is getting changed. Therefore, it could be either oxidation or reduction. Next is MnO4 minus. We have to balance the reaction. Okay, we can balance the reaction. MnO4 minus plus C2O4 minus, converting to Mn2 plus CO2. Here it is +7 plus 3 plus 4. The here oxidation state is getting decreased, so it is reduction. And the difference is 5. Here it is getting oxidation state is getting increased to oxidation. And 1 into there are 2 carbons, so it will be 2. All right, we can separate them out. The reduction will be MnO4 minus plus 5 electron, converting into Mn2 plus. C2O4 2 minus is oxidation, so it will be 2 CO2 carbon को balance कर दिया हमने यहाँ पे 2 electron. To make it to make electrons equal, हमें क्या करना पड़ेगा? Into 2 और यहाँ पे into 5 और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं. ऐड करने पे क्या आएगा? MnO4 minus 2MnO4 minus plus 5 C2O4 minus. यहाँ पे बनेगा 2Mn2 plus 10 CO2. ठीक है. As you can see now, we have to balance oxygen. 8 plus 28 here, 8 H2O will be there. And 16 H plus, we have to balance hydrogen. All right.
Next is which of the following is true related to combustion of fuel? So when fuel is combusted, what happens? Energy is released. Then exothermic process. Exothermic. All right. What is the change in oxidation state of S in the following? So here S is -2, here S is 0. -2 to 0 A option. Clearly, this is decomposition reaction. Very easy question. Change in oxidation state is 5. Now, this is a very famous example, MnO4 minus का. तो यहाँ पे the change in oxidation state is +5. Next is how many moles of electrons are needed for the reduction of each mole of chromium? Each mole of chromium in the reaction. So here the oxidation state is +3, +6, sorry. Here it is +3. So the difference is 3 only. So the answer will be 3. Next, multiple correct questions. Oxidizing nature of H2O2. That means कि H2O2 जो है वो क्या होता है, वो डिकम्पोज होता है लाइक दिस, डिस्प्रपोर्शनेट होता है. यहाँ पे ये -1 है, पर ऑक्साइड है, इसलिए यहाँ पे -2, यहाँ पे 0. यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है H2O के अंदर, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब खुद रिड्यूस होना. तो इसका मतलब जब H2O2 कोई रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है तो वो H2O के अंदर टूटेगा. ठीक है. तो H2O के अंदर ब्रेक हो रहा है वो यहाँ पे, एज यू कैन सी हियर. ऑलराइट. तो और बाकी सब जगह O2 रिलीज हो रही है, आप देख सकते हो. वो नहीं आएगा, ओनली सी ऑप्शन में आएगा. ऑलराइट. यहाँ पे ये एसिड है, ये बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, प्लस डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है. H प्लस OH माइनस के साथ जा रहा है, Na प्लस PO4 माइनस के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है. नेक्स्ट इज क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है. देखो सब बहुत अच्छे से सॉल्यूशन में दिया हुआ है. क्लोरीन का -1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पे -2, सब जगह निकाला हुआ है. वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ठीक है. नेक्स्ट इज यहाँ पे Br का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, -1. तो ये क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है. यहाँ पे +5 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है. तो ब्रोमीन जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है. कार्बोनेट यहाँ पे, कार्बोनेट का कुछ नहीं हो रहा, सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट. तो सही कौन सा स्टेटमेंट? ब्रोमीन इज रिड्यूस एज वेल एज ऑक्सीडाइज. बस ये सही है और बाकी सब गलत है. मैं तो गलत मार्क कर लूँ तो ABC आ जाएगा. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 इज +7. इतनी बार आ चुका है, अब तो याद हो जाना चाहिए बच्चों आपको. +7 आता है. Oxidation is a process in which gain of lignin, meaning loss of electrons. The increase in oxidation state is called oxidation. Yes. The increase in oxidation number is called reduction. नहीं, गलत हो गया. A और C आ जाएगा. Only one non-zero oxidation state. तो ऑक्सीजन जो है उसका तो बहुत सारा कुछ होता है, -2, -1, पता नहीं क्या क्या होता है. क्लोरीन का भी -1, +1, +5, पता नहीं क्या क्या होता है. क्लोरीन का एक ही होता है, -1. सोडियम का भी +1 ही होता है और कुछ नहीं होता. जिंक का +2 होता है हमेशा. बाकी कॉपर का +1, +2 रहता है. हीलियम का 0 रहता है. आयरन का +2, +3 रहता है. फॉस्फोरस का बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है, -3 टू +5. नाइट्रोजन का भी सेम, -3 टू +5. तो तीन ही ऑप्शन है. ठीक है. विथ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर. तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं. यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +4 है, +4 है, +4 है, +6 है, प्लस +6. तो ये तीन ही है जिन पे +4 रहता है. ठीक है. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ वन नाइट्रेट आयन टू हाइड्रोजन.
तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पे -2 है। जो द डिफरेंस है वो 7 का है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चा। ये रिएक्शन बैलेंस करनी है हमको। ऑल राइट। काफी तो खुद ही बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है तो 2 क्रोमियम आ गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है तो 7H2O आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन 14 है तो 14 आ गया। हाफ रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस थी बेटा। बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करने थे, वो अपन ने कर दिया। नेक्स्ट आता है अल्कलाइन मीडियम में ये रिएक्शन बैलेंस करनी है। तो अपन ये सॉल्व कर लेते हैं। MnO4- प्लस SO3 2-, MnO4 2-, प्लस SO4 2-। तो यहाँ पे +7 है, +4 है, +6 है, +6 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। रिडक्शन कितने का, एक का हो रहा है, यहाँ पे दो का हो रहा है। तो हम लोगों ने इसको लिख लिया MnO4- प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग टू MnO4 2-। SO3 2-, SO4 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो आ जाएगा 2 MnO4- प्लस SO3 2-। यहाँ पे आ जाएगा 2 MnO4 2- प्लस SO4 2-। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 3 11, यहाँ पे हो गया 8 4 12। एक ही ऑक्सीजन कमी है तो यहाँ पे H2 ऐड कर दिया हमने। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के लिए 2 हाइड्रोजन 2H+। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2OH- ऐड करते हैं दोनों साइड। ठीक है। और ये वाला पार्ट कितना हो गया, 2H2O हो गया। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1H2 बन जाएगा। बस। यहाँ पे 2OH, यहाँ पे 1H2 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी मान लो आपको डाउट्स हैं तो आप डाउट क्लास में जाके कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। बाय बच्चों। बाय एवरीवन।